So now we are starting with 1.6 pollination. Now what's the meaning of a pollination? Okay, you can see in this picture on a right side of your side. So that is a transfer of pollen grain from a one plant or a one flower to the stigma of another or a same flower. This condition is called it as a pollination. Okay, so you can see that the flower is a reproductive part of a plant, और इस flower के अंदर मेल reproductive part है और फीमेल reproductive part. Male reproductive part of flower, that is nothing but the anther. Okay, ये जो है ये anther है और anther के अंदर क्या होगा? So inside anther there is a process like a anthesis, and after the anthesis there is a formation of a pollen grain. Okay, so ये anther के ऊपर ही क्या form होगा? Pollen grain form होगा. And with the help of different type of pollinating agent like water, air, you can see that there is an insect like a honeybee. So when they are sitting on that flower, so इनके जो भी legs है या तो फिर आपका insect का जो भी part है, so इस part को pollen grain क्या हो जाएगा? stick हो जाएगा. And when this insect is going on another flower or a same flower, और उसके भी कहाँ पर अगर ये स्टिक करेगा, सो ये स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करेगा, which is a female reproductive part of flower. So ये pollen grain इस स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए. So what is the meaning of pollination? A transfer of pollen grain from an anther to a male part to the female part, that is a stigma. Okay, flower के स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट पे pollen grain का ट्रांसफर होगा. This is called it as a pollination. Okay, so now we were starting with the top. So इससे related यहाँ पे देखो क्या दिया है. Pollen grain being non-motile, angiosperm have evolved the strategy to use a abiotic agent like wind and water, and biotic agent, that is bird, insect and snail, to their flower. Just a minute. To their flower, feeding the visitors and exploiting their mobility for pollination, are also seed dispersal. Okay, so what we have seen here. Okay, so हमने यहाँ पे क्या देखा देखो. So you can see here. So what's the meaning of pollination? So normally अगर हम लोग human being का देखेंगे तो human being के अंदर sperm motile है, इसमें movement होता है. But when we are talking about the angiosperm in a plant, so plant के अंदर जो male का gamete का form करने वाला part है, that is pollen grain. So pollen grain is non-motile, मतलब ये खुद से movement तो नहीं कर सकते. So they want a different type of agent. तो यहाँ पर दो type के agent है. Either यहाँ पर अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग एजेंट है, लाइक वाइन यानी कि एयर वगैरह है, उससे भी ट्रांसफर हो सकता है. देन वाटर है, हाइड्रोफिली. देन बायोटिक एजेंट लाइक अ बर्ड, इंसेक्ट एंड स्नेल, इसके वजह से भी क्या हो सकता है, जो आपका पॉलन ग्रेन है फ्लावर का, ये क्या होगा, स्टिग्मा यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर ट्रांसफर होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन. Now the next part में क्या दिया देखो. Pollen grains are non-motile. Again a same word, non-motile means इसके अंदर movement नहीं हो सकता, and they are usually carried from flower to flower by means of external agent. So इसके लिए इनको ये जो transfer है, because pollen grain तो non-motile है, इसके ऊपर कोई structure नहीं है कि ये खुद से transfer हो. So ultimately there are different type of agent. So agents are nothing but you can see in this picture. यहाँ पर ये insect जो honey bee है, तो ये इसको ट्रांसफर करा. वैसे वाटर से भी ट्रांसफर हो सकता है, एयर से भी ट्रांसफर हो सकता है, बैट से भी ट्रांसफर हो सकता है, और बर्ड से भी ट्रांसफर हो सकता है. सो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए फ्लावर को जो पॉलन ग्रेन है इसको क्या लगेगा. सो दे वांट द एक्सटर्नल एजेंट. ओके, इनको एजेंट लगे. नाउ द नेक्स्ट, pollination is a transfer of pollen grain from anther to a stigma of a flower. What's the meaning of pollination? As I already said, the transfer of pollen grain from anther. Anther में जो pollen grain का formation होगा,
उसको कहाँ पर ट्रांसफर करना है, तो उसको स्टिग्मा पे जो ट्रांसफर करना है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इट एज अ पॉलिनेशन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, that pollination is a prerequisite for fertilization because both the male and female gametes are non-motile in a case of plant. Moreover, gametes are produced at a two different sites. Okay, जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पॉलिन ग्रेन फॉर्म होगा और प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ओवल फॉर्म होगा, ये दोनों भी नॉन मोटाइल है, मतलब ये लोग खुद से नहीं आ सकते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए प्लांट में. तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा. और इसी ट्रांसफर करने के लिए फर्टिलाइजेशन अगर प्लांट में होना है, सो दैट पॉलन ग्रेन जो मेल का पार्ट है, इसको क्या है, फीमेल पार्ट स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना बहुत जरूरी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड, दैट इज 1.6 pollination. Now we will go to next slide. Now there are type of pollination. Okay, now there are type of pollination. The first one type of pollination is a self pollination and the second one is a cross pollination. You can see in this picture also. अगर आप लोग ये पिक्चर भी देख लोगे तो यहाँ पर फोटो में भी आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, एक ही प्लांट है और एक प्लांट पे एक फ्लावर है या तो बहुत सारे फ्लावर है और उन्हीं का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर ट्रांसफर होगा, दिस इज कॉल्ड एज अ सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ मतलब उसी प्लांट का मेल गैमेट और उसी प्लांट का फीमेल गैमेट का ट्रांसफर होगा वहां पर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ पॉलिनेशन. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दोनों भी प्लांट स्पीसीज सेम है बट दो अलग अलग प्लांट है और एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर या तो वाइस वर्सा अगर ट्रांसफर हो रहा है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, सो वही पार्ट यहाँ पे दिया. सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच अकर इन अ सिंगल फ्लावर, यानी कि ये सिंगल फ्लावर में भी हो सकता है, और अ टू फ्लावर ऑन अ सिंगल प्लांट रिजल्ट इन इंटरब्रीडिंग एंड सेल्फिंग. इंटरब्रीडिंग यानी कि खुद के ही गैमेट से वो ट्रांसफर क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपको यहाँ पे देखो सेल्फ पॉलिनेशन समझेगा. देखो अब ये एक ही फ्लावर है और वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि वहां पर मेल और फीमेल दोनों भी पार्ट प्रेजेंट. तो उसी फ्लावर का एंथर में से जो पॉलन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा. एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड इट एज अ सेल्फ पॉलिनेशन. और एक ही प्लांट है तो एक ही प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर है और एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरेगा, बट प्लांट जो है वो एक ही होना चाहिए, सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ सेल्फ पॉलिनेशन. देन इसके अपोजिट क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में भी पॉलन ग्रेन ही ट्रांसफर होगा बट दोनों भी प्लांट अलग अलग होने चाहिए. यू कैन सी इन दिस, यहाँ पे देखो, क्रॉस पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower of a different plant of the same species. यानी कि दो प्लांट है, दो अलग अलग प्लांट है, दोनों स्पीसीज एक ही है. ओके, अगर हम लोग एक जगह हिबिस्कस ले रहे हैं तो दूसरे जगह भी हिबिस्कस का ही प्लांट है, दोनों स्पीसीज एक ही है बट दो अलग अलग प्लांट है. दो अलग अलग प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है, तो एक फ्लावर के स्टिग्मा में से एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होगा, दो अलग अलग प्लांट में जब होगा, सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ क्रॉस पॉलिनेशन. यू कैन सी इन दिस पिक्चर आल्सो, आपको ये पिक्चर में देखिए, देखो ये सी वाला टाइप. तो यहाँ पे देखो ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है बट दोनों भी स्पीसीज एक ही, दोनों भी प्लांट के स्पीसीज एक ही है बट दो अलग अलग प्लांट है और इस प्लांट का पॉलन ग्रेन इस प्लांट के स्टिग्मा पे गिरे या तो इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे गिरे, तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड इट एज अ क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, so this is called it as a cross pollination. Now the next, now that pollination can further divided into a three type on the basis of their sources of pollination. So according to their source of pollination, ये जो pollination है
फिर इसके अलग अलग टाइप। ओके, सो नाउ वी विल सी दैट अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन पे हम लोग जाएंगे। Now the first type of pollination is autogamy and also call it as a self pollination. ये भी self pollination का ही एक type है, that is call it as a autogamy. Now what's the meaning of autogamy? Now autogamy is a type of pollination in which bisexual flower is pollinated by its own pollen grain. Offspring are genetically identical to their parents. Example pea plant. यानी कि अगर बटाने का प्लांट ले लिया, सो यू कैन सी दैट दिस फ्लावर, आप लोग ये फ्लावर देख रहे हो, तो देखो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर? तो इस फ्लावर के अंदर मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों भी एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट वन इज एंथर, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो गाइनोशियम, ये एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एंडोशियम और गाइनोशियम एक ही प्लांट। अब इसमें हुआ क्या, एक ही प्लांट के अंदर दोनों भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होने की वजह से ये एंथर में से एंथसिस के बाद जो पॉलन ग्रेन बनेगा वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो गया। सो दिस टाइप इज कॉल्ड इट एज अ ऑटोगामी। ओके, सो दिस टाइप इज कॉल्ड इट एज अ ऑटोगामी। जस्ट a minute allow. Okay, so this is all about that autogamy and self pollination, जो कि self pollination का ही एक टाइप। अब यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है, देखो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया है, ऑस्प्रिन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो उसी प्लांट का गैमेट है, दोनों भी गैमेट उसी प्लांट है, सो अल्टीमेटली उनके क्रोमोसोम और या जीन है जो अलील है वो कुछ अलग टाइप के फॉर्म होंगे क्या? नहीं होगा, बिकॉज दोनों भी गैमेट ओके एक ही फ्लावर के दो अलग अलग है, यानी कि एक ही फ्लावर का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवुल भी है और एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन का भी पार्ट है, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम रहेंगे वो सिमिलर ही रहेंगे। मीन्स ऐसे टाइम में जो न्यू सीड का फॉर्मेशन होगा और नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज ऑस्प्रिंग जो फॉर्म होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे, तो उनके जीन क्या रहेंगे? सिमिलर ही रहेंगे उनके पेरेंट्स से। तो यहाँ पर नए वैरायटी आने के चांसेस बहुत कम है ऑटोगामी। नाउ वी विल सी अ नेक्स्ट पॉइंट,